નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લોકમંચ કાર્યક્રમમાં હું પિનલ આપનું સ્વાગત કરું છું. આજે વાત કરી રહ્યા છે ફરી એક વખત ટાર્ગેટ કિલિંગને લઈને, કારણ કે ફરી કાશ્મીરમાં ટાર્ગેટ કિલિંગની ઘટના સામે આવી છે. શોપિયામાં સફરજનના બગીચામાં કામ કરી રહેલા બે પંડિત ભાઈઓ પર ફરી ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું છે. અને આવી કોઈ પ્રથમ ઘટના નથી. આ પહેલા પણ ઘણા એવા કિસ્સાઓ સામે આવી ચૂક્યા છે. 370ની કલમ દૂર થયા બાદ વારંવાર કાશ્મીરોને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને તેમને મારવામાં આવી રહ્યા છે. ને તો આવી ફરી એક વખત ઘટના સામે આવી છે કે જેમાં બે પંડિત ભાઈઓ પર ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું છે. અને આતંકવાદીઓથી આ જે પંડિતો છે તેમની સુરક્ષા માટે કેવા પ્રકારના પગલાં લેવાની જરૂરિયાત છે તે મુદ્દા પર વાત કરવાની હવે જરૂરિયાત છે. અને તેની સાથે જ 370 કલમ દૂર થયા બાદ આતંકવાદીઓનો જે જોડ છે ક્યાંક ઓછો થયેલો જોવા મળ્યો છે જમ્મુ કાશ્મીરમાં. ને એ જ વાતના લીધે આતંકવાદીઓ ફરી સક્રિય થવા માટે, ભયનો માહોલ ઊભો કરવા માટે જે પંડિતો છે તેમને ટાર્ગેટ કરી રહ્યા છે. તે સિવાય પણ કહી શકાય છે કે જે સ્થાનિક મુસ્લિમો છે, પરપ્રાંતીય મજૂરો છે અને સરકાર કે પોલીસમાં કામ કરી રહેલા જે પણ સ્થાનિક લોકો છે તેમને પણ સોફ્ટ ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહ્યા છે. તો તેની સાથે જ આતંકવાદીઓનો જે ઈરાદો છે, જમ્મુ કાશ્મીરમાં જે 370ની કલમ હટી છે ત્યારબાદ જે પુનઃવસનની યોજના ચાલી રહી છે પંડિતોની, ક્યાંક તેને નિષ્ફળ કરવાનો જે ઈરાદો અહીંયા જોવા મળી રહ્યો છે. પાકિસ્તાનીઓનું ષડયંત્ર છે તેવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે. ભાજપ દ્વારા કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે પાકિસ્તાનીઓ અહીંયા લોહી વહાવવા માટે છે અને કાશ્મીર ઘાટીને કબ્રસ્તાન કરવા માંગે છે. તો તેમના ઈરાદાઓને નાપાક કોણ કરશે? કોની જવાબદારી છે કે પંડિતોને સુરક્ષા પ્રદાન કરે? 370ની કલમને દૂર કર્યા બાદ જે ખુશીનો માહોલ જમ્મુ કાશ્મીરમાં જોવા મળી રહ્યો હતો, ત્યારે હવે જ્યારે આ પ્રશ્ન ફરી ઊભો થયો છે કાશ્મીરોની અને સાથે જ અલ્પસંખ્યકોની સુરક્ષાને લઈને, ત્યારે તેની જવાબદારી કોની છે તેના વિશે વાત કરીશું. સાથે જે ટાર્ગેટ કિલિંગની ઘટનાઓ વારંવાર સામે આવી રહી છે તેની પાછળ શું ઉદ્દેશ્ય છે, શું હેતુ છે તેને સમજવાનો પ્રયાસ કરીશું. જેની માટે મારી સાથે અહીંયા જોડાઈ ગયા છે ડૉક્ટર વિજય સગરજી, જેઓ ઇન્ટરનેશનલ અફેર્સ એનાલિસ્ટ છે અને તેઓ પણ જમ્મુથી છે. અને તેની સાથે આપણી સાથે ભરત બામરૂ જોડાયા છે, જેઓ કાશ્મીરી પંડિત છે. તેઓ પણ જમ્મુથી છે, હવે અમદાવાદમાં નિવાસ કરે છે, પરંતુ તેઓ પણ જમ્મુના રહેવાસી છે ને અત્યારે 13 વર્ષથી અમદાવાદમાં રહી રહ્યા છે. એટલે તેઓ કાશ્મીરી પંડિતોની જે સમસ્યા છે તેના વિશે ચોક્કસપણે જણાવી શકશે. આપ બંનેનું સ્વાગત છે. વેલકમ ટુ લોકમંચ. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी. सबसे पहले विजय सगर जी, टारगेट किलिंग ये जो घटनाएं सामने आ रही है, पंडितों की पीड़ा कह सकते हैं जिसे हम, इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं. सभी लोग जानते हैं और फिर से ये ऐसी घटना की जिसमें 2 पंडित भाइयों को टारगेट किया गया है. मान सकते हैं कि 370 की जो कलम है वो दूर होने के बाद ये टारगेट किलिंग की घटनाएं बन रही है, क्योंकि आतंकवादियों जो जम्मू कश्मीर में हमेशा से राज करते थे उनका जो वर्चस्व कम हुआ है उसे फिर से बढ़ाने के लिए ये किया जा रहा है. विजय जी, देखिए, ये जो घटनाएं हो रही हैं ये बहुत ही दुखद हैं और हम इसकी बहुत कड़ी निंदा करते हैं. और हम अपने सारे कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ, या कश्मीरी हिंदूज और इवन कश्मीरी मुस्लिम्स ऑल्सो जो इंडिया के साथ अपना रखते हैं, हम उनके साथ हैं और उनकी सपोर्ट के लिए खड़े हैं. जहां तक ये वाले इंसिडेंट्स हैं, ये एक लेटेस्ट स्ट्रैटेजी है जो आज इस वक्त रैली में शुरू हुई है, स्पेशली अपने 370 के एब्रोगेशन के बाद. क्योंकि 370 एब्रोगेशन से पहले मैं खुद वहां पे 3 बार रह चुका हूं, ऑपरेट कर चुका हूं आर्मी के साथ, पुलिस के साथ, सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, एनआईए के साथ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के साथ, बीएसएफ के साथ. तो मैं आपको ये बता दूं कि उस वक्त जो कमांड होती थी वो लोकल गवर्नमेंट, जो भी लोकल चीफ मिनिस्टर थे, जो जनरली अब्दुल्ला फैमिली के या पीडीपी के या एनसी के ये लोग होते थे. तो जो यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स होता था, जहां पे एक गठबंधन की एक लड़ाई थी टेररिस्ट के अगेंस्ट, वो ठीक से चल नहीं पाती थी. परंतु 370 जाने के बाद ये सारी की सारी एजेंसीज हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर फंक्शन करती हैं, उनकी दिशा निर्देश के अंडर फंक्शन करती हैं और जबरदस्त सक्सेसेस हुई हैं. और उन सक्सेसेस से बौखला करके तो जो अभी लोकल टेररिस्ट या उनके जो हैंडलर्स हैं पाकिस्तान में, आईएसआई के या जो भी अदर इंटरनेशनल फोर्सेस जो इनमिकल टू इंडिया है, वो इस वक्त बौखला गई हैं. अभी 370 के बाद, जैसे मैं अभी इस वक्त राजस्थान में हूँ, भारत जी इस वक्त गुजरात में है, हमारे देश का कोई भी नागरिक कहीं भी कहीं जाके रह सकता है, तो कश्मीर में क्यों नहीं? तो ये इन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी शुरू की है, जो एक स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया है या हाइब्रिड टेररिस्ट पैदा किए हैं, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये डिटेक्ट करना कौन मुश्किल हो जाए कि कौन टेररिस्ट है और कौन इनोसेंट आदमी है, कौन इनोसेंट नागरिक है.
तो उनसे जी जैसे पिछले महीने आपने देखा एक रूरल बैंक के जो मैनेजर थे जो राजस्थान के रहने वाले थे, उनको चुन के मारा गया। भरत जी, आपको भी लग रहा था, लेकिन ये अब फिर एक नई समस्या कि कश्मीरी पंडितों को ही टारगेट किया जा रहा है आतंकवादियों के द्वारा। Let me start with paying homage to सुनील कुमार। आज एक सवेरे सवेरे एक दुखद समाचार आया और मैं भगवान से दुआ करता हूं कि पिंटू कुमार को भी मतलब वो आज के स्वस्थ हो जाए। जी मैं इस बात को आगे आगे कैरी फॉरवर्ड करूं। ऐसा है, आपको एक बार समझना पड़ेगा, कश्मीर की जो स्थिति है, ये जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी हुआ करता था, मैं फिर 2019 की बात करता हूं, तो परेशानी तो रहती थी। ये थ्रेट रहता था कि सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले होंगे या कहीं पे बम ब्लास्ट होंगे। उस पे अभी थोड़ा सा नकेल कसा है सरकार ने। अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि जो टेररिस्ट आउटफिट्स है ये अभी बौखला गए हैं। जहां तक कश्मीरी पंडितों की सवाल है, मैं आपको बता दूं, हम भी सिचुएशन अच्छी हो जाए तो हम भी जाना चाहते हैं। और जो वहां पे कश्मीरी पंडित फैमिलीज रह रही है या जम्मू से गई है विद दिस इंप्रेशन की चलो हालात, हम भी चाहते हैं कि हालात ठीक हो जाए और देश के, अगर हम डायरेक्टली देश में कुछ नहीं कर पाते, चलो इनडायरेक्टली हम लोग भी देश के साथ है। ये जो जितने भी टीचर्स या जितने भी गवर्नमेंट पीएम पैकेज में हमारे जितने भी भाई गए थे विद दिस इंप्रेशन कि हालात ठीक हो जाएंगे और कल की डेट में हम अपनी फैमिलीज को भी ले लें। ये एक न्यूक्लियर फैमिली के हिसाब से वहां गए हैं। कोई इनके एल्डर्स या जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे पेरेंट्स या उनकी एज के पेरेंट्स अभी नहीं गए, बट हालात ठीक हो जिसपे सरकार काम कर रही है, तो हम भी आश्वस्त थे कि ये स्थिति ठीक हो जाए। अब जी, लेकिन अभी अभी नहीं, 370 हटने के बाद आपको ये नहीं लगा कि हालात सुधर रहे हैं और वहां वापस जाने का प्रयास करना चाहिए? देखो, पहले जैसे जैसे हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट है, इन्होंने व्हाट ही राइटली सेड कि पहले जो यूनिफाइड कमांड में दखल अंदाजी अब्दुल्ला फैमिली जो भी सरकार रहा करती थी उनकी थी। अभी फ्री हैंड दिया गया है। अभी अभी क्या है कि आपको चेंज मिल रहा है। आपको जब आप चेंज देख रहे हो कश्मीर में, कल तक लाल चौक में भारत का झंडा नहीं लहराया जाता था बिकॉज ऑफ थ्रेट। आज ऐसी स्थिति बन गई है कि वहां पे तिरंगा लहराया जा रहा है और उसके लिए मिलिटेंट्स को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। वो उनको सॉफ्ट टारगेट क्या मिलता है, कश्मीरी पंडित मिलता है जो अपने ऑर्चार्ड में काम कर रहे थे। और जहां तक मेरी जानकारी है, मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक शांति प्रिय लोग हैं। हम लोग मिलिटेंट्स के लिए 90 में भी सॉफ्ट कार्नर थे, आज भी सॉफ्ट कार्नर है, बट स्टिल वी आर विद द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है जी, विजय जी, कब तक कि रहेंगे ये सॉफ्ट टारगेट? कश्मीरी पंडित कब तक सॉफ्ट टारगेट रहेंगे? इनकी सुरक्षा की जवाबदारी किसकी? यहाँ ये मान सकते हैं कि ये पाकिस्तानियों का ही षड्यंत्र, जैसा कि अभी तक की जो भी जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि पाकिस्तानियों का ये षड्यंत्र है, यहाँ पर फिर से इन्हें टारगेट किया जा रहा है। कुछ जो भी यूथ है उन्हें मिसगाइड किया जाता है और वहां के स्थानिकों का भी दुरुपयोग किया जाता है, उन्हें भी भड़काया जाता है और ये इस स्थिति का निर्माण किया जा रहा है। विजय जी, देखिए, ऐसा है जो आपने बोला ना, ये पाकिस्तानी षड्यंत्र है। मैं आपको बता दूं, ये पहले ओवरऑल जो सबसे स्ट्रेटेजिक लेवल पे ये एक गजवाए हिंद, यानी कि हिंद को फतेह करना है। ये लोग जैसे उसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी जो भी मारे गए हैं, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करती थी। उसके बाद क्या हुआ कि जो इंडिया और पाकिस्तान की जो 47 में जब पाकिस्तान बना तो उनको जम्मू कश्मीर हड़पना था, उन्होंने हमला किया। तो वो हमारे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह थे जो जम्मू कश्मीर फोर्सेस के चीफ थे, वो खुद गए बैटल ग्राउंड में और उन्होंने उन कबायलियों को रोका जब तक इंडियन आर्मी आ नहीं जाती। इसीलिए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को कहा जाता है सेवियर ऑफ कश्मीर। अगर वो उनको 4-5 दिन नहीं रोकते तो शायद कश्मीर आज हमारे पास नहीं होता। तो ये इनिशियल लड़ाई वहां से चली आ रही थी, जो पाकिस्तान की आईएसआई ने पंजाब एजिटेशन, जब पंजाब में इंसर्जेंसी खत्म हो गई तो उसके बाद उनके पास अगला कोई चारा नहीं था इंडिया के अगेंस्ट, तो उन्होंने कश्मीर में इंसर्जेंसी शुरू की। तो अभी वो अपने प्रोपेगेंडा करते हैं, अपने हैंडलर्स भेजते हैं, तालिबानी टेररिस्ट भेजते हैं, या इवन जो सीरिया में लड़ रहे हैं
भाड़े के टट्टू जो हैं उनको भेजते हैं और यहाँ अनरेस्ट क्रिएट करवाते हैं। और बीच में साथ साथ में रिलीजियस फैनेटिसिज्म, रिलीजियस रेडिकलाइजेशन की पूरी कोशिश रहती है, उसकी वजह से करते हैं। तो ये बेसिकली रीजंस हैं कि यहाँ पे आज इंसर्जेंसी है। मैं यकीन के साथ आपको दिला दूं, अगर आप ये भी मानते हैं कि शेख अब्दुल्ला ने के साथ पूरा कश्मीर था, उन्होंने महाराजा के अगेंस्ट लड़ाई करके शायद कश्मीरियों को बचाया, मैं बिल्कुल नहीं मानता। उन्होंने सिर्फ अपने कुछ क्रोनीज, कुछ फैमिली मेंबर्स और 20%, 30% लोगों का भला किया। 60% कश्मीरी आज भी वैसे ही गरीब और वैसे ही डिप्राइव्ड हैं जैसे बाकी वाले। भरत जी, आप क्या मानते हैं इस बात पर? आई टोटली एग्री विद हिम। उसमें मैं थोड़ा इसको और बढ़ा दूं। जो शेख अब्दुल्ला फैमिली थी उस समय उन्होंने अपना जितना भी उनका अपनी फैमिली को बढ़ावा दिया या मुफ्तीज ने किया। अगर आप आज का कॉमन आदमी जो कश्मीर का कॉमन मुस्लिम लोग है, वो आप देख लीजिए कैसे रोड पे तिरंगा लेके निकले। वो कह रहे हैं कि यही हमारी आजादी है। लेकिन हम लोगों को सारा कुछ ये देख के जो मिडल्स को अभी तक फ्रस्ट्रेशन है, अभी वो उसी का ये दे रेसिप्रोकेटेड। तो बाकी सरकार अभी जितना अच्छा काम कर रही है, मिलिटेंट्स को ढूंढ के मारती है, तो एक ऐसा माहौल लग रहा है कि हालात ठीक हो जाएंगे। तो नहीं, जिस तो अभी उम्मीद में ये किसकी जवाबदारी है? जब 370 की कलम हटने के बाद जो स्थिति का निर्माण अभी हो रहा है, जो कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है, फिर से आज जब ये समाचार सामने आए हैं और यहाँ पर बीजेपी का कहना है कि पाकिस्तानी ही कश्मीर में इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, कश्मीर घाटी को कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं, ये बीजेपी कह रही है। तो क्या लगता है आपको कि ये अब किसकी जवाबदारी है? ये कब सही होंगे माहौल? नहीं, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। पाकिस्तान का हाथ तो इसमें 100% हो। 1947 से भी आप देखेंगे तो तब से तो है ही, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे अभी सरकार, फौज, इवन आई विल टेल यू, जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो फ्रंट पे लड़ रही है। उसमें ऐसा नहीं है कि वहाँ हिंदू है, वहाँ मुस्लिम आप कितने हमारे जवान उसमें शहीद हो गए हैं। फ्रंट पे तो पुलिस ही लड़ रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस लड़ रही है और मिलिटेंट्स का खात्मा कर रही है। बट ये है कि ये एक इसको आप युद्ध देखिए, युद्ध समझिए या एक कॉन्स्पिरेसी समझिए, इसको हमको हैंडल करना है। और ये हमारा दायित्व है सबका, देश का, सरकार का, एवं नागरिकों का भी। हमको सरकार के साथ, इसमें सरकार जो डिसीजन लेती है उसका साथ देना चाहिए। जी विजय जी, जी आपको यहाँ थोड़ा बताना चाहूंगा जी जी बोले किसकी जवाबदारी है। जवाबदारी डेफिनेटली गवर्नमेंट की है और सिक्योरिटी फोर्सेस की है, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु आपको यहाँ ये समझना चाहिए, इसको बिना पॉलिटिसाइज किए हुए अगर हम बोलेंगे बीजेपी ने ये बोला तो बाकी पार्टीज बोलेंगे ये पॉलिटिकल मसला हो गया है। ये पॉलिटिकल मसला नहीं है। यहाँ पे जो हमारी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोग और नेवी के लोग भी वहां हैं, बाय द वे, बहुत सारी लेक्स के अंदर। तो जो आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस, यहाँ आपकी इंटेलिजेंस सर्विसेज, वो इस वक्त सब बड़ी अच्छे तरीके से लड़ रही हैं। परंतु आपको ये समझना चाहिए कि हमारी जो ये ताकत है सिक्योरिटी फोर्सेस की, कंबाइंड ताकत जो सिनर्जाइज हो चुकी है इस वक्त अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम, दिल्ली से ऑर्डर्स आते हैं, कंट्रोल होता है, वो इस वक्त हमारी कोई उसकी क्या बोलते हैं उसको, जर्मन आर्मी नहीं है या हिटलर की आर्मी नहीं है कि किसी बल पे भी चढ़ा दो। हमारी प्रियम्बल में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर 10 अपराधी छूट जाते हैं कोई बात नहीं, परंतु एक इनोसेंट आदमी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और यही रूल यहाँ पे भी लागू होता है। हमारे को खुली इतनी छूट नहीं है कि हम जाके एकदम से मारना शुरू कर दें, कोलैटरल डैमेज में इनोसेंट भी मारे जाएं। तो हम कहते हैं कि हमें सिलेक्टिवली ढूंढना पड़ता है इनोसेंट लोगों के अंदर कि यहाँ पे मिलिटेंट कौन है, यहाँ गड़बड़ी फैलाने वाला आदमी कौन है। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फाइटिंग विद द वन हैंड टाइड बिहाइंड योर बैक। तो वो प्रॉब्लम है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की। जबकि दूसरी तरफ जो मिलिटेंट्स हैं उनकी पूरी पाकिस्तान से आईएसआई की सपोर्ट है, प्लस कंट्रीज लाइक टर्की, मलेशिया, चाइना। तो इस किस्म के जितने कंट्री जो इनमिकल टू इंडियाज इंटरेस्ट हैं,
या इंडिया को आगे नहीं आना चाहते, वो सब मदद कर रहे हैं। जैसे कि आपको अभी खबरें मिली हैं कि जितने वेपन्स मिल रहे हैं वो इन जी हाइब्रिड टेररिस्ट या स्लीपर सेल्स इनके पास मिल रहे हैं, और वेपन्स के ऊपर चाइनीज मार्किंग है, टर्किश मार्किंग है, हल्के वेपन्स हैं, वो सारे के सारे ड्रोन्स के जरिए ये लाइन ऑफ कंट्रोल से एक 19 जगह पे इनको अक्रॉस पहुंचाया जाता है। तो ये काम बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हमें पूरी 100% सपोर्ट चाहिए जनरल मासेस की भी लड़ने के लिए। परंतु प्रॉब्लम ये है कि जनरल मासेस चाहे वो मुस्लिम्स हो, उनके अंदर इतना डर भर दिया है विजय जी आपको कोई नहीं भी लगता मदद करी तो आपको मार दिया जाएगा। आपको नहीं लगता कि यहाँ जहाँ भी पंडित कश्मीरी पंडित रहते हों, ऐसे जितने भी विस्तार है वहां पर सुरक्षा बढ़ाई जाए, और जितने भी वहां के स्थानिक हैं वो भी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करें, वो भी आगे आए और देखिए पीनल जी, तैनात की जाए उनके लिए। हाँ ये प्रपोजल दिया जा चुका है, परंतु जो मुस्लिम फ्रेटर्निटी वहां पे है, जो अच्छे लोग हैं, वो कहते हैं कि अलग कॉलोनी क्यों बनानी है, हमने यहाँ इजराइल नहीं बनाना है, आप हमारे साथ मिलके रहिए। परंतु हमारा उनको क्वेश्चन ये होता है कि अगर आप आपके साथ मिलकर रहेंगे तो आप उनकी सुरक्षा की गारंटी दीजिए, वो नहीं हो पा रहा। और अगर कश्मीरी पंडितों की एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है कानून कश्मीर, कानून कश्मीर ने अपना एक निकाला है पैम्फलेट, उसके अंदर उन्होंने बोला है कि श्रीनगर कश्मीर के अंदर एक और यूनियन टेरिटरी क्रिएट की जाए जो ईस्ट एंड नॉर्थ ऑफ झेलम रिवर हो, और वो सिर्फ पंडितों का इलाका हो, उन्हीं को दे दिया जाए, तो वहां पे उनकी सुरक्षा बनाई जाए। तो ऐसे विचारों के ऊपर भारत सरकार इस वक्त गौर कर रही है कि जो वहां का जो कश्मीरियत का जो पुराना सूफीज्म का जो एक थ्रेड है, सोशल थ्रेड, उसको बगैर खराब किए गए हम एक सोल्यूशन ढूंढें। परंतु जो हमारे एडवर्सरीज हैं उनको वो थ्रेड की कोई चिंता नहीं है, उनको सिर्फ एक मुस्लिम कैलिफेट चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और जो उनके रिपोर्ट में कंट्रीज हैं दुनिया के इनमिकल टू इंडियन इंटरेस्ट, वो कहते हैं कि आप आगे जाइए, हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसकी प्रगति नहीं होनी चाहिए, ये लोग गरीब रहें, पिछड़े रहें और हमारे साथ कंपीट ना करें। तो ये हम एक जो लड़ाई है कश्मीर घाटी के अंदर बड़े मल्टीपल लेवल पे फाइट कर रहे हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मोदी जी की गवर्नमेंट जब से आई है, मैं कोई बीजेपी वाला नहीं हूं, मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूं, और मैं एक एनालिस्ट हूं, आपको बता रहा हूं जो कदम मोदी गवर्नमेंट ने 2014 के बाद उठाए हैं, स्पेशली 2019 वाला, वो इस पहले कभी नहीं किए गए थे, शायद उनकी तरफ कभी तवज्जो भी नहीं दी गई थी। और छोटे मोटे बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये स्टेप लेने के बाद नहीं, 370 हटाने के बाद भी अगर ये स्थिति देखने मिलेगी तो इनडायरेक्टली फिर से कश्मीरी पंडित वहां जाना नहीं पसंद करेंगे, या जब वो अपने आप को सुरक्षित ही नहीं महसूस करेंगे, तो 370 हटने के बाद भी ये पुनर्वसन की जो योजना है वो सफल नहीं हो पाएगी। भरत जी, पीनल ये एक कैट एंड माउस गेम है। जब 370 हटाने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया, बहुत भारी सफलता मिली, तो उसके जवाब में टेररिस्ट ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है। अभी ये जो नई स्ट्रेटजी है, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी इसका तोड़ ढूंढ रही हैं, और इसका तोड़ हो सकता था कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो फॉरेन में ऑपरेट करती हैं, अनफॉर्चुनेटली मोदी जी से पहले कुछ गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपने फॉरेन के जितने भी हमारे इंटेलिजेंस के दस्ते थे उनको खत्म कर दिया। फिर जनरल वीके सिंह ने भी कुछ बनाने की कोशिश की, उसको भी खत्म कर दिया। अब उसको पूरे ताने बाने को दोबारा जोड़ के इनके साथ जो लड़ाई लड़नी है उसके लिए तैयारी की जा रही है। जी तो भरत जी, अभी इस समय पर कश्मीरी पंडितों का क्या सोचना है, जो वहां पर रह रहे हैं उनकी भी मानसिकता, और जो यहाँ से वहां जाना चाहते हैं उनकी भी अभी ये स्थिति को देखते हुए क्या मानसिकता है? विकल बहन, आपको समझना पड़ेगा जो 370 और 370 एक लार्जर ब्रॉडर क्वेश्चन है। कश्मीरी पंडित को 370 से कोई 370 तो पहले भी था, पहले था तो कश्मीरी पंडित अगर हालात ठीक होते, कंडीसिव हालात होते तो हम उस समय भी जा सकते थे। और अभी ये जो 370 हट गया है, ये 370 रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए हट गया है कि कोई भी नागरिक वहां जा सके, पहले नहीं जा सकता था। अभी रही बात हमारी, हम 32 साल से कश्मीर से बाहर है, और 32 साल से हम, जैसे अभी विजय सर ने बड़ी अच्छे तरीके से कानून कश्मीर का बोला, वी आर डिमांडिंग कानून कश्मीर। हम एक अलग यूनियन टेरिटरी मांग रहे हैं, क्योंकि 32 साल बहुत हो गया। हम अभी अगर वहां जाएंगे भी तो हमें एडजस्ट करने में और 30 साल लगेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि उस माहौल में हम तैयार है जाने के लिए, लेकिन हालात ठीक हो जाए।
जहां तक रही बात हमारी जो बाहर कश्मीरी पंडित है या वहां पे रह रहे, वहां पे जो रह रहे हैं तो वो तो डायरेक्ट मतलब तैयार है वहां रह, वो वैसे ही रह रहे हैं उधर। जो पीएम पैकेज में गए थे वो भी वहां दे आर सर्विंग, दे आर जॉब कर रहे हैं वहां पे। लेकिन जो ये सॉफ्ट किलिंग हो रही है, टारगेट किलिंग हो रही है, इससे थोड़ा सा मनोबल जो कम होता है, बट वी जी शुड बी रेडी फॉर दैट। सरकारें जो काम कर रही है वो अच्छा काम कर रही है अभी आज की तारीख में। बट ये क्या है कि ये हम आसानी से कहते हैं कि जब भी हम लाइक बोलते हैं कि 70 साल, ये 70 साल हो गए इस समस्या को, ये अभी 2-4 साल 8 साल में ये खत्म होने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी सरकारें फौज अच्छा काम कर रही है। तो इसलिए वहां पे एस्केलेशन का माहौल है। जब तक पूरा मिलिटेंसी टेररिज्म खत्म नहीं होगा तब तक वहां पे शांति पूरी नहीं आ सकती है। और जी जी, मैं कब आपको तक एक खत्म नहीं जानकारी होगा विजय जी ये टारगेट किलिंग की मैं घटनाएं? मैं जी 10 सेकंड और ऐड कर दूं जिसमें विजय जी जी भी मेरे से सहमत होंगे। ये शोपियान और अनंतनाग ये अभी 2 डिस्ट्रिक्ट्स में है। बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है कश्मीर के, वहां पे इतना मिलिटेंसी का नहीं है जहां पे कंट्रोल में रखा है सरकार, ये सिक्योरिटी फोर्सेस है। ये अभी शोपियान, पुलवामा और अनंतनाग में है, और उसमें भी फौज अच्छा काम कर रही है। और उम्मीद है कि ये पूरी टेररिज्म जो है खत्म हो जाएगा। जी 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 विजय जी, ये उम्मीद है, ये जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कश्मीरी और कश्मीरी पंडित और कश्मीर में रहता हर एक नागरिक, क्या ये उम्मीद पूरी होगी सरकार से? जिस तरह की टारगेट किलिंग की घटनाएं बार बार सामने आ रही है और आतंकवादी जो फिर से एक बार अपना वर्चस्व जमाने के लिए ये प्रयत्न कर रहे हैं, क्या वो उसमें सफल हो पाएंगे? और उनको निःशुल्क करने के लिए सरकार को किस तरह के स्टेप्स लेने की जरूरत है, क्या कहेंगे अंत में? देखिए, आप ये समझिए कि अभी जो ये टारगेटेड किलिंग है, ये जो हो रही हैं, ये सारी वारदातें साउथ कश्मीर में हो रही हैं। नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर में बहुत कम है, बल्कि ना के बराबर है, सिचुएशन कंट्रोल में है। साउथ कश्मीर में इसलिए क्योंकि साउथ कश्मीर से ये जो मुगल रोड चलती है, जो रजौरी पुंछ होकर पाकिस्तान जाती है, ये टेररिस्ट की एक हाईवे है। इसको ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है और उसकी तरक्की हो रही है। और अभी जो गवर्नमेंट का काम है कि हमारे जो इंडिया के हम लोग, हालांकि मैं भी जम्मू कश्मीर का हूँ, स्टेट सब्जेक्ट पुराना भी था, अभी भी डॉक्टराइल हूँ। उसके अलावा मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी चाहते हैं जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी रिलीजन, कोई भी कास्ट, कोई भी क्रीड, हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहे, सौहार्दपूर्ण रहे, शांति से रहें। हमारा डिस्प्यूट हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, बट डिफरेंस ओपिनियन का मतलब ये नहीं है कि हम आपस में लड़ना शुरू कर दें। और जो भी देश की बात है, नेशन कम्स फर्स्ट, इंडिया ऑलवेज हमेशा आएगा, नेशन फर्स्ट। तो नेशन फर्स्ट में हमें मिलकर काम करना है ताकि हम सब लोगों की ओवरऑल भलाई हो। और जी जी, और इसके लिए बाहर है तो भी साथ देना पड़ेगा। मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, 2 चीजें मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये कश्मीर जो है, ये सेवियर ऑफ कश्मीर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की जो मार्टियरडम है, उनकी जो शहादत है, वो उसकी वजह से हमारे साथ है। और नंबर 2, ये कहना कि कश्मीर के सारे लोग एंटी इंडिया है, पाकिस्तानी है, बिल्कुल गलत है। 60%, 70% लोग जिनको शेख अब्दुल्ला और ये जो 3 फैमिलीज थी उनकी पेट्रोजन नहीं मिली, वो अभी भी उतने ही गरीब, जी जी, और उतने ही पुअर हैं। हरकतें अपने साथ रोकने का प्रयास करना पड़ेगा, सभी को एक होना जरूरी है। समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। विजय जी, भरत जी, अब हमारे साथ चर्चा में जुड़े, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शक મિત્રો, આજે વાત કરી છે ટાર્ગેટ કિલિંગની જે ઘટનાઓ કાશ્મીરમાં વધતી જોવા મળી રહી છે, કયા વિસ્તારોમાં ટાર્ગેટ કિલિંગ વધુ જોવા મળી રહ્યું છે અને શું મોડસ ઓપરેન્ડી છે આતંકવાદીઓને, પાકિસ્તાનીઓનું આ ષડયંત્ર છે અને સાથે જ ક્યાંક જે રીતની આ ઘટનાઓ વધતી જોવા મળી રહી છે, 370ની કલમ હટાવવા બાદ જે રીતે નાગરિકો ત્યાં ફરી એક વખત પુનર્વસનની જે યોજના છે તેને સફળ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, પરંતુ આતંકવાદીઓ તેને નિષ્ફળ કરવાના પ્રયાસો કરી રહ્યા છે। ફરી એક વખત પોતાનું વર્ચસ્વ ત્યાં વધે તે માટે કાશ્મીરોને ટાર્ગેટ કરવા, કાશ્મીર પંડિતોને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહ્યા છે। ત્યારે હાલમાં અત્યારે આ કાશ્મીરી પંડિતોની સુરક્ષા માટે કેવા પ્રકારના પગલાં લેવાની જરૂરિયાત છે, કઈ રીતે બધાએ ભેગા મળીને કાશ્મીર માટે લડવું પડશે, દેશ માટે લડવું પડશે અને ત્યાંથી આ આતંકવાદને નાબૂદ કરવું પડશે, તેના વિષય પર ચર્ચા કરી છે। અત્યારે લોકમંચ કાર્યક્રમમાં બસ આટલું જ। ફરીથી મળીશું એક નવા વિષયની સાથે, ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।